Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So, I am here with the day 7 of the free BET crash course. And tomorrow, I have already uploaded one video related to the what you have to do to score more than 70% marks in the upcoming DBT GRF examination. I hope आप सबने उसे देखा होगा, and I am also expecting that you all have written down the important strategy which I have mentioned in that video. So if you have not seen it, I will tag the link in the description box as well as an I button. And I will request to watch all the series because it is extremely important as per the syllabus of DBT GRF exam. And I can assure you that you will increase your marks in the upcoming exam by this series. So stay tuned and do watch the complete video. So these are some of the questions from an extremely important topic which is frequently asked in several examinations including the DBT GRF, the CSIR examination and also in GATE examination. So this is basically from the portion dealing with the mode of action of several antibiotic, and it is frequently asked and 100% important topic as per the syllabus of CSIR also and DBT also. So in today's video we will discuss the mode of action of different antibiotic and some questions related to it. जितने भी antibiotics होते हैं they have different mechanism of action and therefore we have to discuss it one by one, and I will request all of you to kindly note the mode of action of that particular antibiotic. I will request कि आप जो भी antibiotic mention कर रही हूँ मैं उसको आप लिखते जाइए that how it works because it is extremely important as per the examination point of view. So let's discuss the first question, that is the mode of action of antibiotic penicillin is. So basically penicillin जो है वो कैसे काम करता है ये पूछा गया है, और ये जो दो questions मैंने लिए हैं it is from DBT GRF previous year examination paper, एंड जो दो एंटीबायोटिक पूछा है उसके अलावा भी एंटीबायोटिक और पूछा जा सकता है. देयर आर न्यूमरस क्वेश्चन ऑन एंटीबायोटिक, तो इसलिए मैंने इसमें एक डायग्राम ही इंक्लूड कर दिया है ताकि उससे आपको इजीली समझ में आ जाए. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज इट डज इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस. सो द फर्स्ट आंसर इज इट इनहिबिट्स द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस. The second question is rifampicin is specific inhibitor of. So basically it inhibits the bacterial RNA polymerase and therefore it inhibits the transcription, that is the synthesis of the mRNA. So answer will be option A. Now this is the most important diagram I must say from the microbiology section, or you can say that the cell biology section. Microbiology section हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि कौन सा एंटीबायोटिक उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे किल करेगा वो डिफरेंट होता है. इट मीन्स कि बैक्टीरिया 1 जो है और बैक्टीरिया 2 जो है दोनों का मोड ऑफ किलिंग जो है वो सेम नहीं होगा. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अगर एक कोई एंटीबायोटिक है, लेट्स से एंटीबायोटिक ए, तो और हमारे पास बैक्टीरिया हैं 2, लेट्स से बैक्टीरिया 1 एंड बैक्टीरिया 2, तो जो एंटीबायोटिक ए है उसका मोड ऑफ एक्शन जो होगा वो बैक्टीरिया 1 एंड बैक्टीरिया 2 के अगेंस्ट अलग अलग होगा, बिकॉज हर बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है वो डिफरेंट है. कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है, कोई बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है. तो क्या होता है, डिफरेंस आ गया सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, और सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया तो जो एंटीबायोटिक काम कर रहा है उस पर वो भी ज़रूरी नहीं है कि एक एंटीबायोटिक हर बैक्टीरिया पे एफिशिएंटली वर्क करेगा. और इसीलिए हम लोग कैटेगराइज करते हैं हर एंटी माइक्रोबियल एजेंट को डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ अ बैक्टीरिया. आई एम अगेन रिपीटिंग दैट दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. अगर आप सेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं, CSIR दे रहे हैं, DBT दे रहे हैं, आपको हमेशा इससे एक नया क्वेश्चन मिलेगा और इसका कोई तरीका नहीं है. आप इस डायग्राम का ही स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए एंड मेमोराइज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस दैट विच antibiotic is efficient for the cell wall synthesis inhibition, which is important for the inhibition of protein synthesis by inhibiting the 50S inhibitor of the ribosome और the 30S inhibitor. तो ऐसे करके आपको याद रखना होगा खुद के नोट्स बना के
अगर आपको खुद का नोट्स नहीं बनाना है, यू वांट टू सेव योर टाइम, सो यू कैन डू इज take the screenshot of this image and save it in your phone and you can watch it regularly, so it will be automatically revised day by day, and this is the most important topic from cell biology and microbiology. Now if we talk about the cell wall inhibitor, so basically there are some of the antibiotic which act by inhibiting the cell wall or by destroying the cell wall of a bacteria, like cycloserine, वेनोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, पेनिसिलिन्स, अभी हमने पेनिसिलिन पे क्वेश्चन भी देखा था, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स एंड कार्बापेनिम्स. अब ये जितने भी आपको एंटीबायोटिक्स दिख रहे हैं, ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकते हैं इधर, या फिर सेल वॉल के जो स्ट्रक्चर को है, मतलब जो पेप्टाइडोग्लाइकन लिंकेज होता है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कोई भी एक एंटीबायोटिक का नाम देगा, उसका मोड ऑफ एक्शन पूछेगा. इसके अलावा क्या कर सकता है, सेल वॉल सिंथेसिस के बहुत सारे एंटीबायोटिक का नाम दे देगा और उनमें से एक ऑपोजिट कोई दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करता है, तो आपको फाइंड आउट करना होगा. इसके अलावा फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को जो रोकता है वो ट्राइमेथोपोरिन एंड ऑल्सो सल्फोनामाइड्स. ये जो है ट्राइमेथोप्रीम एंड सल्फोनामाइड्स, ये क्या करता है, फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो ये भी आ सकता है. इसके अलावा आप देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है, इसके अलावा जहाँ से मुझे क्वेश्चन देखने मिला है वो है प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर. यानी ये वाला जो है पार्ट वो फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, प्रोटीन सिंथेसिस. और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हमें पता है कि 50S 30S अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम को, तो कौन सा एंटीबायोटिक किस सब यूनिट को टारगेट करता है टू प्रोवाइड द एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, उसको आपको याद रखना होगा. तो सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन CSIR में भी ये जो प्यूरोमाइसिन है उस पर हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है. प्यूरोमाइसिन क्या करता है, tRNA को इनहिबिट कर देता है. उसके अलावा 30S के इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं, टेट्रासाइक्लिन्स, स्पेक्टिनोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकेसिन एंड नाइट्रोफ्यूरेंस. तो ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं, वो 30S के इनहिबिटर्स हैं. इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल एंड क्लाइडामाइसिन, इसके साथ लिंकोमाइसिन. तो ये सब क्या करेंगे, 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को इनहिबिट करते हैं एंड देयरफॉर दे प्रोवाइड द एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी. तो आपको याद कैसे रखना है, आपको याद ऐसे रखना है जनरली जिसमें बहुत सारे नाम हैं. मैंने पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जो ऑड वन आउट है हमेशा एग्जामिनर उसी को टारगेट करता है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ों को मेमोराइज रखना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. सपोज कि सेल वॉल सिंथेसिस में इतने सारे एंटीबायोटिक है, हम इसको याद रखने में थोड़ी सी हमको दिक्कत होगी, यानी कि अगर हम याद भी रख लेते तो थोड़े दिन बाद हम उसे भूल जाएंगे. तो इसीलिए मैंने क्या क्वेश्चन देखा है, मैंने देखा है जितने कम एग्जाम्पल्स हैं उन पे, जैसे DNA गायरेज 100% ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है. जो क्विनोलोन्स होते हैं लाइक नालिडिक्सिक एसिड, सीफ्रोफ्लैक्सिन या नोवोबायोसिन, ये तीनों को आप रट लीजिए कि ये क्या करते हैं, DNA गायरेज को इनहिबिट करते हैं. बिकॉज ये वाला जो है टॉपिक उसको हम लोग DNA रेप्लिकेशन के टाइम पे भी पढ़ते हैं कि कौन से एंजाइम को कौन सा एंटीबायोटिक इनहिबिट करता है. और ये जो DNA गायरेज इनहिबिटर हैं ये कैंसर सेल थेरेपी में भी यूज़ करते हैं ताकि उन सेल्स का DNA रेप्लिकेशन क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, DNA रेप्लिकेट ना हो, सो दैट कैंसर सेल क्या हो जाए, अगर DNA ही नहीं होगा सेल में तो सेल का एग्जिस्टेंस कोई होगा ही नहीं. तो ये एज अ एंटी कैंसरस ड्रग भी यूज़ होता है. तो ये वाला आप 100% याद रख लीजिए कि आपको ये तो रट के ही जाना है. उसके अलावा RNA एलोंगेशन को कौन इनहिबिट करता है, एक्टिनोमाइसिन. और लिपिड बायोसिंथेसिस को कौन रुकता है, प्लेटेंसीमाइसिन. तो ये सब आपको याद रखना है. अगर आप इसको कम से कम 10 से 15 मिनट भी देंगे तो आप बहुत सारे ट्रिक्स लगा के या बहुत सारे एक्रोनिम्स के थ्रू भी याद रख सकते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा मेमोराइज नहीं भी कर पाते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप ये DNA गायरेज और ये प्रोटीन का 50S 30S एंड tRNA, ये वाला 4 भी आप कर लेंगे तो आपको ये पोर्शन बन जाएगा. एंड
इसको बार बार देखते रहिए, हर बार फ़ोन में हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट होना चाहिए, और आप इसको चाहें तो सेव भी करके रख सकते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था हाउ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रोवाइड द एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। तो हमने देखा बहुत सारे, तो उसमें से आपको मेजरली कौन सा याद रखना है, जो डीएनए गायरेज इनहिबिटर है, डीएनए गायरेज किस किस को इनहिबिट कर देता है। उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस का ब्लॉक कौन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। अब इसमें भी 50S राइबोसोम सब यूनिट को कौन टारगेट करता है, 30S को कौन करता है, tRNA को कौन करता है। ये आपको ये 4 चीज़ तो एकदम 200% करके ही जाना है। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से मैंने देखा है कि क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, हमें याद नहीं रह पाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। बट द थिंग इज़ कि जब क्वेश्चन एक साथ आता है क्वेश्चन पेपर में, जिसमें सब टॉपिक्स के सब यूनिट के क्वेश्चन जब कंबाइन होते हैं, तो हम वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन का भी हम आंसर पता नहीं कर पाते हैं। आप भी अग्री करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द CSIR एज वेल, तो ये क्या है, ये सिंपल सा टॉपिक है, क्लासेस ऑफ जीन्स ट्रांसक्राइब्ड बाय यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज। कौन सा RNA पॉलीमरेज किस टाइप का RNA सिंथेसाइज करता है, सिंपल सा। ये जो टेबल है वो कूपर का है, कूपर द सेल बायोलॉजी की जो बुक है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कूपर में जो डायग्राम्स हैं एंड उसमें एक छोटे छोटे ऐसे की पॉइंट्स हमेशा ऐसे येलो बॉक्स में देता है, उन की पॉइंट से डायरेक्टली CSIR ने क्वेश्चंस बनाए हैं, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो उसकी येलो कलर का रहता है। ये अगर आपके पास कूपर होगी तो आप उसमें देख सकते हैं, ये इस बॉक्स से डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। जैसे कुछ भी इसने की पॉइंट लिखा, एंटीबायोटिक का ही लिखा, सपोज कि ये एंटीबायोटिक इस चीज़ को इनहिबिट करता है, तो उसी में और 3-4 ऑप्शंस जोड़ के CSIR क्वेश्चंस बनाता है। तो आपको देखना है, स्टैंडर्ड बुक्स ही जो है उसको आप बिल्कुल एकदम ऐसे इतना ज़्यादा पढ़ लीजिए कि किसी भी टाइप के क्वेश्चंस उठे आप सब चीज़ का उसमें आंसर दे पाएँ। तो अगर इसमें हम लोग देखें कि जो mRNA है वो सिंथेसाइज होता है किससे, RNA पॉलीमरेज 2 से। ये तो हमें याद होता है कि RNA पॉलीमरेज 2 जो है वो मेजर सिंथेसाइजर है mRNA का। उसके अलावा जो tRNA है वो सिंथेसाइज होता है RNA पॉलीमरेज 3 से। राइबोसोमल RNA और जो उसके 3 सब यूनिट्स होते हैं 5.8S, 18S, 28S, इसको बनाता है RNA पॉलीमरेज 1, और जो 4th सब यूनिट है दैट इज़ 5S, वो बनाता है RNA पॉलीमरेज 3। यानी कि RNA पॉलीमरेज 3 क्या क्या बना रहे हैं, tRNA भी बना रहा है और 5S RNA भी बना रहा है, यानी rRNA का 5S छोटा वाला सब यूनिट उसको भी बना रहा है। अब जो दूसरे SNRNA और scRNA जो होते हैं उसको 2nd and 3 वाले दोनों मिलके बनाते हैं। उसके अलावा ये दोनों तो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स एंड क्लोरोप्लास्ट जीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनील DNA। तो इसको तो उतना याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। SNDNA इज स्मॉल न्यूक्लियर DNA एंड SC इज़ फॉर स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA। अब ये जो टॉपिक है वो सिंपल सा है, लेकिन बहुत हो सकता है कि DBT के पार्ट A में पूछ ले, क्योंकि पार्ट A में तो जनरल साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक सा है, जनरल सा है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। नाउ आज का जो सेकेंड टॉपिक था वो अगेन था RNA पॉलीमरेज, कौन से RNA को सिंथेसाइज करते हैं। सो दिस इज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू कैन take out the screenshot and you can revise it on a regular basis. Now the third topic of today's video is from cell cycle and division. ये diagram देख के ही you will agree that this is the most important topic from the cell biology section, that which CDKs and which cyclins are responsible for the phase transition in the cell cycle. So for the G1 phase, CDK4 as well as 6 are extremely important, and if we talk about the cyclins, so basically cyclin D1, D2 and D3 are important and are the cyclins of G1 phase particularly, यानी कि CDK4 और 6 जो हैं वो G1 phase के लिए responsible होते हैं, and cyclin D1, D2 and D3, and apart from that for the transition of G1 to S phase, CDK2 and cyclin E are responsible. For the S phase, CDK2, cyclin A, and for the transition of G2 to M phase, that is mitosis phase,
CDK1 and cyclin A are important, and for the mitosis CDK1 and cyclin B are important. तो ये जो है थोड़ा सा सिंपल तो है, आई एग्री कि सिंपल है, बट जितनी सेम चीज़ें होती है मेमोराइज़ करना उतना मुश्किल होता है क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है. तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी सिमिलर चीज़ें आपको मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये टेबल आपको दिख रहा है, इसमें CDK है, साइक्लिन है, और सेल साइकिल का कौन सा फेज के लिए कौन सा CDK कौन सा साइक्लिन यूज़फुल है. अब अगर आप एक को याद रखेंगे, से अगर आपने सिर्फ S फेज का याद रखा है कि CDK2 और साइक्लिन A रिस्पॉन्सिबल है, आपको एग्जाम में पूछा G1 फेज का, तो क्या आप वर्कआउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे टॉपिक को अटेम्प्ट करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? यू हैव टू मेमोराइज दिस होल टेबल. और आप कैसे मेमोराइज करेंगे वो मैं समझाती हूँ आपको. नाउ सी व्हाट आई पर्सनली डू इज, सबसे पहले in the first column CDKs are mentioned, and in the second column cyclin, and in the third column the phases of the cell cycle are mentioned. So what you do is write the numbers 4, 6, 2, 2, 1, 1. This is the CDK. ये आपका CDK दिख रहा है 4, 6, 2, 2, 1, 1. यही वाली कॉलम को हमने बस नंबर्स को लिख दिया है और यहाँ पे साइक्लिन को मेंशन कर दीजिए. साइक्लिन में भी CDK 4 और 6 में साइक्लिन D, फिर E, A, फिर A, B. यानी आपको यही एक्रोनिम याद रखना है 4, 6, 2, 2, 1, 1, D, D, E, A, B. और फेजेस तो हमेशा हमें याद ही रहते हैं क्योंकि फेजेस तो सीक्वेंस ही यही होता है. G1 फेज के बाद G1 S फेज, देन S फेज, देन G2M, देन माइटोसिस. तो फेजेस तो आई गेस कि रिमेंबर रखने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज द सीक्वेंस जो होता है एक पूरे सेल साइकिल डिवीजन का वो यही होता है कि G1 फेज, उसके बाद फिर G1 S फेज, फिर उसके बाद S फेज, उसके बाद फिर G2M फेज, एंड देन फाइनली माइटोसिस फेज. तो ये याद रहेगा. तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख दीजिए कि जो 4 है CDK 4 एंड साइक्लिन D, ये दोनों का जो पेयर है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? G1 फेज के लिए. और ये जो 6 और D है वो G1 फेज के लिए याद रहेगा. उसके बाद G1 खत्म हुआ तो क्या आएगा? G1 S आएगा. तो 2 और E जो है वो किसके लिए आ जाएगा? फिर G1 S फेज ट्रांजिशन के लिए. देन उसके बाद CDK 2 और A G1 S के बाद डायरेक्टली S फेज आ जाएगा. उसके बाद 1 और A जो है वो G2M फेज के लिए आ जाएगा, CDK 1 एंड साइक्लिन A. फिर ये जो 1B है 1A के बाद 1B, वैसे भी आप याद रख सकते हैं. तो 1A 1B, G2M खत्म हुआ तो क्या आएगा? माइटोसिस आएगा. तो ये माइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इस तरह से मैं याद रखती थी 4, 6, 2, 2, 1, 1 और फिर D, D, E, A, B. ये वाले अप्रोच से आप 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, आपको बन जाएगा. अगर आपको अभी डिफिकल्ट भी लग रहा होगा तो, बिकॉज ऐसे जो भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं याद रखने को, अगर आप उसका सिंगल याद रखेंगे 100% श्योर है कि आप उस क्वेश्चन का, अगर वो आएगा क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आप पढ़ के गए हैं वही एग्जामिनर पूछे, उससे रिलेटेड कोई भी फेस पूछ सकता है. तो हमेशा याद रखिए द की पॉइंट इज़ कि जब भी सिमिलर चीज़ें हैं आपको कैसे याद रखना है? कंपैरेटिव पढ़ना है. आई एम अगेन रिपीटिंग, हर वीडियो में मैंने ये मंत्र बताया है कि कभी भी सिमिलर चीज़ें आती हैं तो उसको कंपैरेटिव बेसिस में पढ़िए. अगर आप सिंगल पढ़ेंगे तो आपको जीवन भर वो याद नहीं रहेगा. थोड़ी देर के लिए आपको याद रहेगा बट आप तुरंत उसको भूल जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको. और ये डायग्राम भी आप रख सकते हैं निकाल के. ये सारे जो है ये नोट्स, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं. आपको ऐसे लगता होगा कि मैं ऐसे कुछ भी देख के बता रही हूँ, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई पर्सनल नोट्स जो मैं आपको पढ़ाती हूँ एंड जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ. एक क्वेश्चन जो मैंने हमेशा देखा है और इसके अलावा ये है फॉस्फेटाइडल सेरीन पे. यानी मैंने सिर्फ की पॉइंट्स ही लिखा है यहाँ पे. द अपोप्टोटिक बॉडीज आर रिकग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटाइडल सेरीन. जो फॉस्फेटाइडल सेरीन होता है इट एक्ट एज अ मार्कर फॉर द अपोप्टोसिस. यानी जो फॉस्फेटाइडल सेरीन होता है वो जनरली नेचुरली इट इज़ अ फॉस्फोलिपिड, ये तो हमें पता है. ये नॉर्मली इनर लीफलेट में प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में. जैसे ही अपोप्टोसिस करना है हमारे पास एक ट्रांसलोकेटर होता है, लिपिड ट्रांसलोकेटर स्क्रैम्बलेज. ये क्या करता है? फॉस्फेटाइडल सेरीन को आउटर लीफलेट में भेज देता है, यानी अंदर से वो बाहर की तरफ आ गया है. तो इट
एक्ट एज अ मार्कर और इट एक्ट एज अ सिग्नल कि हाँ अब उस सेल में क्या होना है, एपोप्टोसिस होना है, बिकॉज वो इनर लीफलेट से बाहर आ गया है. सो इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ईट मी सिग्नल. जब भी किसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में फॉस्फेटाइडोल्सेरिन आ जाता है, इट मीन्स कि वो एपोप्टोसिस में वो सेल जानी है. तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि एपोप्टोसिस का मार्कर क्या है, सबसे पहले तो ये आता है, तो फॉस्फेटाइडोल्सेरिन. या फिर ईट मी सिग्नल से भी क्वेश्चन मैंने देखा है किसी एक एग्जामिनेशन के पेपर में, ईट मी सिग्नल ऑफ द सेल इज बाय विच फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फेटाइडोल्सेरिन. और एक और क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं सी में. नॉर्मल जो सेल होती हैं जब उसको एपोप्टोसिस नहीं करना है तो जो फॉस्फेटाइडोल्सेरिन का लोकेशन है वो इनर लीफलेट में होगा. एंड इफ इट हैज़ टू गो फॉर द एपोप्टोसिस, जो इनर लीफलेट में है फॉस्फेटाइडोल्सेरिन, स्क्रैम्बलेज के थ्रू वो आउटर लीफलेट में आ जाएगा. तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. एक ही क्वेश्चन मुझे डीबीटी के पेपर में दिखा था, सो आई हैव इंक्लूडेड इन दिस वीडियो. जो भी मुझे इंपॉर्टेंट दिखता है वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मुझसे वो मिस ना हो जाए, इसलिए मैं उसी वीडियो में वो डाल देती हूँ. सो द क्वेश्चन सेज दैट विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया अप्रूव्स एंड गिव रेगुलेटरी क्लियरेंस ऑफ बायोलॉजिकल्स. सो इन इंडिया the regulatory license is provided by the Central Drugs Standard Control Organization, that is CDSCO. It is responsible for providing or granting the license of certain specialized category of critical drug. और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल अगर रिलीज़ हो रहा है या कोई मेडिकल डिवाइस या कोई कॉस्मेटिक्स, बायोलॉजिकल्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो वैलिड है या नहीं है, सेफ़ है या नहीं है, उसकी टेस्टिंग के बाद CDS को ही लाइसेंस ग्रांट करती है. एंड देन ओनली वो मार्केट में रिलीज होता है वो प्रोडक्ट. नाउ वन मोर टॉपिक जिससे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, दैट इज फ्रॉम नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सेशन से. इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं और हर बार कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा बैक्टीरिया फ्री लिविंग है, कौन सा एरोबिक है, कौन सा एनारोबिक है. तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो एरोबिक होता है वो होता है एज़ोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया. उसके अलावा एनारोबिक कौन होता है, क्लोस्ट्रीडियम्स आर एनारोबिक, और पर्पल एंड ग्रीन फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दैट इज मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोजेंस जो होते हैं आर्किया के टाइप्स, वो होते हैं एनारोबिक. इसके अलावा सिम्बायोटिक में कौन आता है, राइजोबियम. तो हमें हमेशा 12th क्लास से याद आता है राइजोबियम. उसके अलावा फ्रैंकिया पे क्वेश्चन आता है, ब्रेडी राइजोबियम पे भी क्वेश्चन आता है. सो आपको याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया एरोबिक है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच बैक्टीरिया इज एनारोबिक विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, एंड ऑल्सो द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है और उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता है कि कौन सा बैक्टीरिया. सिम्बायोटिक तो हमेशा याद भी रह जाता है एक बार को, राइजोबियम, लेकिन एरोबिक एंड एनारोबिक में आपको याद रखना है कि कौन सा एनारोबिक है, कौन सा एनारोबिक नहीं है. सो फॉर एरोबिक कौन कौन से हैं, एज़ोटोबैक्टर एंड साइनोबैक्टीरिया. एनारोबिक में क्लोस्ट्रीडियम, पर्पल एंड ग्रीन फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड एज वेल एज मिथेनोबैक्टीरियम. अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होगा, मेटाबॉलिज्म, तो आपको पता होगा मिथेनोजेंस लाइक मिथेनोबैक्टीरियम इज एनारोबिक, और पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी एनारोबिक होते हैं. सिम्बायोटिक में तो आपको पता है राइजोबियम एंड फ्रैंकिया. उसके अलावा नाइट्रिफिकेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है. सो फॉर नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोसोमोनास है, वो क्या करता है, अमोनियम को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में. उसके अलावा नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट. उसके अलावा डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, स्यूडोमोनास, बैसिलस के स्पीशीज़, पैराकोकस. तो ये भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, डू कमेंट बिलो एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट कि जितने भी सीरीज़ आ रहे हैं उसको बहुत सिंसियरली देखिए. एंड कल जो मैंने एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो डाली थी उसको भी देखिए, आपको बहुत कुछ स्ट्रैटेजी समझ आ जाएगी. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.